comrade. Comrade Presidium, member of steering committee, our former leader, Comrade Ananda, Comrade M.A. Baby, I think Rajesh, not now present here, M.B. Rajesh, and our friends coming from Cuba, and all of our friends, all delegates coming from different states of our country. So we are proud. Red salute and greetings all of you. So I am very happy. Second time in West Bengal State Committee organized historical DYFI All India Conference. हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए हमारे DYFI की क्रांतिकारी साथियों सबको अभिवादन, धन्यवाद, लाल सलाम। साथियों, we DYFI already discussed our leader, history of DYFI, youth. You know, is a very important stage of our life, very important. Throughout the world, youth played glorious role, fight against imperialist force and independence movement. In our country also, 190 years, youth basically sacrifice life. Long history, youth movement in our country, even throughout the world, fight against imperialist forces, fight against communal forces, and our DYFI, Comrade M.A. explained the history. 1925, Bhagat Singh formed Naujawan Bharat Sabha. And 1931, Bhagat Singh Sukhdev Rajguru hanged, we know. After independence, various type of state from the youth organization. DYF in West Bengal, Tripura, Assam, Socialist Youth Federation, Kerala, Tamil Nadu, and other states, Andhra Pradesh Janaprajatantram Yuva Sangam, Punjab Naujawan Bharat Sabha. So all youth organization, those who are same ideology assemble 1980 Ludhiana Conference. DYF to DYFI. Ludhiana Conference, first conference, and now 42 years over. Second conference, Calicut, third conference, Madras, fourth conference, Mumbai, fifth conference, Kolkata. Just I mentioned fifth conference. This conference time in West Bengal, salute to State Committee, West Bengal State Committee, very challenging situation. You know, West Bengal अभी बम मोर्चे का सरकार नहीं है। जिस मौका में हमारा नौजवान साथी DYFI साथी हर दिन संघर्ष करते करते खून में रास्ता लाल हो जाता है, इसी टाइम में ये कॉन्फ्रेंस सम्मेलन करना बहुत चुनौती है। और जब फिफ्थ ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी टाइम जो समाजवाद का सपना देख के हम लोग DYFI में शामिल हुआ,
उसी टाइम समाजवाद खत्म हो गया, सोवियत रशिया खत्म हो गया, ईस्ट यूरोपियन कंट्री खत्म हो गया। तमाम दुनिया में ये नारा लगाया जो समाजवाद नहीं चलेगा, खत्म, सोशलिज्म फिनिश्ड, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म फिनिश्ड। एट दैट टाइम throughout the world some communist party changed the name. Thousands of books, Marx, Lenin, burning varieties type of, बहुत सारे देश में वो आग में जला देता है। मार्क्स का किताब, लेनिन का किताब। इसी टाइम में एक कलकत्ता, बंगाल और भारत में जो हम लोग नौजवान सभा करते हैं, वामपंथी संगठन में है, हमारा कुछ इतिहास नौजवान बनाता है, हमारा विद्यार्थी संगठन बनाता है। जब वियतनाम अमेरिका का जंग में लाखों वियतनामी जनता का मौत होता है, उसी टाइम में एक कलकत्ता शहर एक नारा दिया था, जिस नारा अभी वियतनाम में आप जाओ वो बंगला में भी आपका साथ गले के गला मिलाएगा। पता है क्या बंगाल का साथी, बताओ? नहीं 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 नहीं, यस यस यस, थोड़ा जोर में। तुम्हारा नाम अमर नाम, तुम्हारा नाम अमर नाम, तुम्हारा नाम अमर नाम, वियतनाम, योर नेम माई नेम, वियतनाम वियतनाम। ये जो नारा है ना, अभी आप वियतनाम में जाके कोई भी स्पीच दो ना, उसी टाइम में आप ये बात बोलो तो वियतनाम का जो नौजवान साथी है, हो ची मिन कम्युनिस्ट यूथ वियतनाम यूथ फेडरेशन, वो आपका साथ ये नारा देगा, तुम्हारा नाम अमर नाम, वियतनाम वियतनाम। तो मैं इसीलिए वियतनाम का बात बोला। जब सोशलिस्ट वर्ल्ड खत्म हो जाने का टाइम में क्या होगा, हम डीवाईएफआई समाजवाद का पक्ष में, समाजवाद के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। तब हम 5th कॉन्फ्रेंस DYFI raised the slogan, socialism is the future is ours। समाजवाद भविष्य है, भविष्य हमारा है, समाजतंत्र भविष्य, भविष्य आमादेरी। We the DYFI raised the slogan in our 5th All India Conference throughout the country, not only, throughout the world, पॉपुलराइज दिस स्लोगन अगेन। हम लोग सपना देखना शुरू किया, समाजवाद भविष्य है। आज भी हमारा साथ क्यूबा का साथी है, अमेरिका साथ टक्कर देते देते क्यूबा आज भी समाजवाद का रास्ते में चलता है, लड़ता है और अमेरिका के खिलाफ जंग जीत रहा है। वियतनाम है, कोरिया है, आज भी चाइना उस समाजवाद की रास्ता में चलते हैं। और हम आज भी हमारा 11th DYFI ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में हम लोग जब मौजूद हुआ, तब भी हम वो नारा नहीं छोड़ा, समाजवाद भविष्य है, सोशलिज्म इज द फ्यूचर, सोशलिज्म इज द फ्यूचर। आज कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि जो बताया था, जो मार्क्स नहीं चलेगा, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट में जब काम नहीं है, खाना नहीं है, नौजवान विद्यार्थी लोग ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट में वो नारा दिया, बैक टू मार्क्स। कार्ल मार्क्स का तस्वीर लेके तमाम दुनिया का जो इकोनॉमिस्ट वो लिखना शुरू कर दिया कि नहीं, मार्क्स को चाहिए, मार्क्स को चाहिए। और हमारा देश में आज एक खतरनाक सरकार है। DYFI को बहुत बड़ा चुनौती है मोदी का फैसिस्टिक गवर्नमेंट। उनको क्या काम है? अरे हिंदुस्तान, हमारा जो मेन स्लोगन है सेकुलर इंडिया, स्ट्रगल फॉर सेकुलर इंडिया। एक धर्मनिरपेक्ष देश में नरेंद्र मोदी ये धर्मनिरपेक्षता का पिलर को खत्म करना चाहते हैं। हम जब बताता है हमारा रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो मोदी का बीजेपी RSS वाला क्या बताता है? हमारा मंदिर चाहिए, मंदिर। अरे मंदिर के खिलाफ DYFI नहीं है, SFI नहीं है, कोई भी वामपंथी संगठन, किसान सभा, मजदूर संगठन, महिला संगठन जो इधर बात किया, कोई बोला हम मंदिर के खिलाफ है ना, हम मंदिर के खिलाफ नहीं है। मंदिर और बनाओ,
3,37,00,000 मंदिर है और मंदिर बनाओ। हम मस्जिद का खिलाफ नहीं है, लेकिन बीजेपी का इसी नारा का साथ हम खिलाफ इसीलिए है, आरएसएस का नारा है मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाओ, इसके खिलाफ डीवाईएफआई है। मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाओ, इसके खिलाफ हम लोग है। हमारा नारा क्या है? बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जब ये नारा देगा मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाओ, तब डीवाईएफआई का नारा होगा मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं, गिरजा तोड़ के गुरुद्वारा नहीं, गुरुद्वारा तोड़ के गिरजा नहीं। हम हमारा हिंदुस्तान में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा एक साथ देखने चाहते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान का परंपरा है, ये हमारा हिंदुस्तान का परंपरा। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा एक साथ हम लोग देखना चाहते हैं। हम लोग, आपको पूछता है कुछ लोग, देखो आज जाओ मोदी जोगी जहां है, गुजरात में जाओ, यूपी में जाओ, हिंदुस्तान का कोने कोने में आरएसएस वाला क्या पूछता है? अरे भाई तुम हिंदू है ना मुसलमान है? तुम हिंदू है ना मुसलमान है? हिंदू है ना मुसलमान है, ये बात नहीं है। हमारा काम क्या है? हमारा बात ये बोलना है, हिंदू जब वो पूछेगा तुम हिंदू है ना मुसलमान है, हम उनको ये बात बोलना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माँ की चार सिपाही। हिंदू मुस्लिम जात का नहीं, हमारा भात चाहिए, रोटी चाहिए। जात का राजनीति नहीं है, जात का नहीं, धर्म का नहीं, धर्म का नाम पर, जात का नाम पर संघर्ष नहीं है। हमारा संघर्ष रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार के लिए करना होगा। आज ये खत्म करना चाहते हैं, देश को बंटवारा करना चाहते हैं। हमारा देश को एक साथ ले जाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तुम हिंदू बनेगा, तुम मुसलमान बनेगा, नहीं नहीं, हम लोग ऐसा कुछ बनना नहीं चाहते हैं। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। बहुत दिन पहले उर्दू कवि ने एक कविता लिखा, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। हमारा डीवाईएफआई को ये जवाब देना होगा, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। कोई पूछे तो हम ये जवाब देगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये सवाल नहीं, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आज हिंदुस्तान में क्या हमारा रोजगार चाहिए, हमारा रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। क्या करता है नरेंद्र मोदी? हिंदुस्तान को खत्म कर देता है, सारे कुछ बंटवारा करके। नौजवान का काम 14 करोड़ से ज्यादा जो रोजगार था उनको छटनी कर दिया। नौजवान का रोजगार के लिए हमारा फाइट को और स्ट्रेंथन करना होगा। दोस्तों, मैं बात को ज्यादा लंबा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हमारा बहुत सारे नेता इधर बताया, जो फार्मर लीडर्स का जो सेशन है, मैं लीडर नहीं हूं, मैं आप सबका अभी भी दोस्त है, दोस्त था। वी आर लीडर, वी आर कैडर, नौजवान साथी। हमारा हिंदुस्तान का कोने कोने अभी बहुत सारे नौजवान हैं, जो नौजवान का पास जाना है, सोशलिज्म का बात लेके, समाजवाद का बात लेके से पहले नहीं होगा। ये हमारा अनुभव है। जब नौजवान सभा में यूनिट कमेटी, लोकल कमेटी, जिला कमेटी, स्टेट कमेटी से ऑल इंडिया में काम करने का मौका मिला, हाउ टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू रीबिल्ड ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू स्प्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डीवाईएफआई को और आगे बढ़ाने के लिए नौजवान को बीच में आपको जाना है, और जाने का पहले मौका में आप ये बात बोलो, जे भाई समाजवाद अच्छा है, आप आ जाओ डीवाईएफआई करो। अरे भाई साम्राज्यवाद बहुत खतरनाक है, आप आ जाओ डीवाईएफआई करो। मोदी बहुत खराब है, आप आ जाओ डीवाईएफआई करो। ममता बहुत खराब है, आ जाओ डीवाईएफआई करो। पहले तो दोस्ती करो, दोस्ती का जो बात चलता है उसी बात चलते चलते अब बताओ समाजवाद क्या है। अभी क्यूबा कैसे सबको शिक्षा का काम किया, क्यूबा सबके लिए कैसे शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल कैसे क्यूबा में हुआ, जॉब फॉर ऑल कैसे क्यूबा में हुआ, 200 जनता के लिए एक हेल्थ क्लिनिक हम लोग का ये देखने के मौका मिला। ये कैसे
हेल्थ सिस्टम, कोविड सिचुएशन में आप लोग देखा पूंजीवादी दुनिया और क्यूबा, वियतनाम, कोरिया, चाइना कैसा अलग अलग एक रास्ता दिखाया। जब अमेरिका में, इटली में, यूरोप में मौत का हर घर में, रास्ते में, सड़क में मुर्दा का मिছিল देखा हम लोग, तो अब क्यूबा में क्या दिखा, वियतनाम में क्या देखा, कैसे कोविड को वो लोग कब्जा किया। आज भी हम लोग को वो रास्ता दिखाता है, समाजवादी देश रास्ता दिखाता है। इसीलिए आज कोने कोने के नौजवान का पास हमको उनका साथ में बातचीत करना है। आप अकेला जाओ, अकेला बातचीत करो, पहले दोस्ती करो, स्कूल में पढ़ते पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते 15 साल जो हो गया ना, नौजवान कहां पे नहीं है, नौजवान कहां है, हर जगह में, हर गांव में, इंडस्ट्री में, स्कूल में, कॉलेज में नौजवान है, नौजवान खेती में है, नौजवान इंडस्ट्री में है, नौजवान कॉलेज में है। तो कोई भी हमको पूछ सकता, तपस्दा वो जो कॉलेज में है उसको तो मेंबर एसएफआई बनाएगा, हम क्या करेगा। अरे 15 साल उम्र, नौजवान है ना, नौजवान है, इसीलिए वो नौजवान सभा डीवाईएफआई का मेंबर बनेगा। और वो स्टूडेंट्स है ना, वो स्टूडेंट्स फेडरेशन का एसएफआई का मेंबर बनेगा। इसलिए कोई डिबेट नहीं है डीवाईएफआई में, ये डिबेट डुअल मेंबरशिप का डिबेट बहुत पहले खत्म हो गया। कोई टीचर बनेगा, स्टूडेंट से टीचर बनेगा, तब भी उनका उम्र 30 होगा, 35 होगा, तो वो भी डीवाईएफआई का मेंबर हो सकता। हमारा जो संविधान डीवाईएफआई ये बात बताया। तो हमारा नौजवान हर जगह में है, तो इसी नौजवान का साथ हमारा संपर्क को करना होगा। संपर्क को करके संगठन को और तेजी, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक, जहां जहां पे अभी तक डीवाईएफआई का झंडा नहीं है, वहां पे संगठन को करने के लिए हमारा जो नया नेतृत्व इस सम्मेलन में आएंगे। इस सम्मेलन से हमको चैलेंज लेना होगा, हिंदुस्तान का और सारे जो स्टेट है उसी स्टेट में हम लोग डीवाईएफआई बनाएंगे। डीवाईएफआई बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन 80 से 42 42 इयर्स में और कुछ स्टेट है, कुछ जिला है जहां डीवाईएफआई नहीं है। डीवाईएफआई बहुत, हाँ, हमारा लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन in our country, second largest youth organization of the world, चाइना का ACYF का बाद हमारा डीवाईएफआई है। लेकिन डीवाईएफआई मेंबर ऑफ UPD ऑल्सो, मेंबर ऑफ UPD। हमारे डीवाईएफआई के और तेजी करने से आने वाला दिन में हन्नंदा जैसे बताया, ऐसा कोई मुद्दा हमारा नजर में नहीं आएगा। देखा ना, मैं मेरा अंतिम जो शब्दों में एक बोलना चाहते हैं ना, जो बंगाल में 2021 का असेंबली इलेक्शन का बाद सारे मीडिया वाला क्या बोलना शुरू कर दिया, अरे भाई लेफ्ट जीरो, लेफ्ट जीरो, लेफ्ट जीरो, लेफ्ट जीरो। बीजेपी वाला तेज से बोलता है, अरे भाई तुम कुछ दिन खामोश रहो, जीरो है, लेफ्ट इज जीरो। जीरो वैल्यूलेस क्या? मैं अभी एमबी राजेश को पूछा था, एमबी राजेश केरला में बीजेपी का कितना एमएलए है? वो बोला जीरो। हिंदुस्तान का तख्त में बैठे वाला बीजेपी अभी 9 स्टेट है जहां पे जीरो है, जहां पे जीरो। अरे वो तो हिंदुस्तान का तख्त में है, लेकिन लेनिन उनका किताब में बहुत पहले लिखा, जो क्रांतिकारी है ना वो जीरो में डरता नहीं, जीरो से शुरुआत करो। और हमारा जीरो वैल्यूलेस नहीं है। हिंदुस्तान का एक महान वैज्ञानिक जीरो का वैल्यू क्या है वो बताया। एक का दाएं आप जीरो शून्य नहीं लगाओ तो 10 बनेगा नहीं, एक का दाएं 2 शून्य नहीं लगाओ तो 100 बनेगा नहीं, एक का दाएं 3 शून्य नहीं लगाओ तो 1000 बनेगा नहीं, और एक का दाएं 5 शून्य नहीं लगाओ तो लाख नहीं बनेगा। हम जीरो से 100 बनेगा, 1000 बनेगा, लाख बनेगा, हम आगे बढ़ते रहेगा। जीरो में डरने वाला नहीं है। जीरो होने का बाद बेबी कॉमरेड बेबी ने बताया ना,
घूम के देखा, अखबार में पढ़ा, 0 होने का बाद पश्चिम बंगाल में कोविड का सेकेंड वेव आया था। बीजेपी का एक आदमी को सड़क में देखा नहीं, टीएमसी का एक आदमी सड़क में नहीं था। एक 0 वाला स्टूडेंट यूथ रेड वॉलंटियर कोविड पेशेंट को लेकर ऑक्सीजन, हॉस्पिटल ले जाना, ऑक्सीजन देना, खाना देना, कैंटीन चलाना, कम्युनिटी किचन चलाना, वो काम हम लोग हमारा वामपंथी नौजवान सभा विद्यार्थी संगठन ने किया। हम लोग ऐसा तेज से काम करना चाहते हैं कमरेड। जनता का पास में, जनता का बीच में जो काम करना है। हमारा बंगाल का एक बहुत यंगेस्ट नौजवान कवि एक कविता लिखा था, ए बयस जाने रक्तदानेर पुण्य, दिस उमर नो डोनेट द ब्लड। सुकांत भट्टाचार्य ने लिखा था, रक्तदान खून देने के लिए नौजवान तैयार है। क्या कमरेड तैयार है? तो खून देने के लिए, किसी के जान के बचाने के लिए, खून देने के लिए हम लोग तैयार है। तो तमाम हिंदुस्तान में DYFI अभी खून दान कार्यक्रम में, ब्लड डोनेशन प्रोग्राम में हम लोग हाईएस्ट टॉप रैंक में DYFI है। आप गवर्नमेंट का जो स्टैटिस्टिक्स ले लो, बंगाल से केरल तक तमाम हिंदुस्तान में 60% ब्लड बैंक का जो जरूरत होता है वो हम लोग DYFI ऐसे भाई हम डोनेट करता है। और कोई TMC वाला नहीं, बीजेपी वाला नहीं, RSS वाला नहीं, विश्व हिंदू परिषद वाला नहीं। अभी सुकांत भट्टाचार्य वो जो नौजवान कवि जिंदा नहीं है, नहीं तो मैं उनको बता सकता, जे कवि जी आप बोला नौजवान सिर्फ खून देने के लिए तैयार, खून देने के लिए तैयार नहीं। हमारा दाएं साथ शहीदों का पिक्चर है ना, तस्वीर है। हम लोग हमारा हिंदुस्तान का ये समाज बदल करने के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। हम जान देने के लिए भी तैयार है। संघर्ष आगे बढ़ाने के लिए देखा हमारा मैदुल को कैसा पुलिस ने पिटाई करके हत्या किया। ऐसा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस से शुरू करके हजारों नौजवान क्रांतिकारी फांसी का फंदे में, बंदूक का गोली में जान कुर्बानी किया। आज भी हमारा DYFI साथी केरल का कुतुपुरम्बा में मधु बाबू, राजीव रोशन, शिबूलाल ने एक दिन पुलिस का गोली में 5 शहीद नौजवान DYFI का साथी कुतुपुरम्बा 25 नवंबर 1996 कुतुपुरम्बा में 5 नौजवान शहीद हुआ। और बंगाल में कितने बताओ शहीद, बहुत लंबा सबसे ज्यादा जो लिस्ट है वो हमारा नौजवान सभा का शहीद का लिस्ट है। मरियम धावले ने बताया ये कितना लंबा होता है। शहीद का सपना पूरा करना हमारा काम है। हम जितने सारे संगठन का नेता है, हम लोग का जिम्मेदारी है शहीद का सपना को पूरा करने के लिए। इसीलिए शहीद श्री भगत सिंह से शुरू करके आज तक DYFI का जितने सारे नौजवान जान कुर्बानी किया, उसका कुर्बानी को सलाम देना तब तक ठीक होगा जब हम उनका सपनों को पूरा करने के लिए और हमारा संगठन को मजबूत करना है। स्ट्रेंथन आवर ऑर्गेनाइजेशन, फाइट अगेंस्ट कम्युनलिज्म, फाइट अगेंस्ट इंपीरियलिज्म एंड सेव कम्युनल हार्मोनी। हिंदुस्तान को एक रखने के लिए हमारा संघर्ष को तेज करना होगा। आप इधर जो चर्चा होगा शुरू करेगा सारे स्टेट, आप देखो लड़ाई जारी रखना होगा। इतने सारे साथी आपका DYFI में आप जुड़े हुए, हमारा सपना ऐसा ही है। हिंदुस्तान का ऐसा एक भी स्टेट नहीं होगा जहां पे DYFI का झंडा नहीं हम दिखने पाते हैं। हर कोने कोने में DYFI का झंडा लेके जनता के लिए संघर्ष करना होगा। हिंदुस्तान को बदल के लिए संघर्ष करना होगा। मोदी, ममता, जोगी सरकार का खिलाफ और जितने सारे सरकार वो फैसिस्टिक है, वो सांप्रदायिक है, देश को बंटवारा करने चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं, उनके खिलाफ संघर्ष करना है। संघर्ष के लिए हम लोग को तैयारी होना चाहिए। इसीलिए कमरेड हम ये बात बोलना चाहते हैं, हमारा बात खत्म करूंगा 2 शब्द से। एक शब्द मैं ही बोलूंगा और दूसरा शब्द आपको तेज से बोलना होगा। जो 2 शब्द भगत सिंह फांसी का फंदे में चढ़ने का टाइम में
उन्होंने बोला था, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने। उसी शब्दों मैं एक शब्द बोलने का बाद दूसरे शब्द आपको पता है वो सबको, इसके बारे में कोई लैंग्वेज के फर्क नहीं होगा। बंगाल में भी ये नारा चलता है, असम में भी ये नारा चलता है, तेलंगाना में, केरल में, तमिलनाडु में, पंजाब में, कश्मीर में, हर जगह में। तो क्या बोलूं, वो दो शब्द क्या है? ए इनकलाब, ए इनकलाब, ए इनकलाब। Long live DYFI. Thank you, comrade. Abhay will facilitate Comrade Tabasenka, and on behalf of West Bengal State Committee, comrades, give the T-shirts to our former leaders. West Bengal comrades will give the T-shirt for former leaders. Two. Pandit Kishore and Pandit Shrover. They said you are the inheritors of Bhagat Singh. We know. We were with you. We were fighting. They escaped. They could not be shot or caught.